Good morning to everyone. So we will do this sum. You can see in your screen the following balances appeared in the books of R Limited. Name of the company is R Limited. Date given is 1st of April 2013. Debenture redemption fund had the amount of rupees 60,000. They say represented by investments of an equal amount. So जितना फंड में अमाउंट है उतना ही इन्वेस्टमेंट्स भी किया है. So फंड में there is 60,000. So investment also will be equivalent to 60,000. But the nominal value of investment was 75,000. Nominal value means face value, printed value 75,000. But cost value was 60,000. The 12% debentures stood at rupees 90,000. तो value of debenture जिनको redeem करना है उसका value है 90,000. The company sold required amount of investment. See this point में समझ में आता है कि कंपनी ने पूरा इन्वेस्टमेंट सेल नहीं किया. रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना चाहिए रिक्वायर है उतना सेल किया एट 90%. एट हाउ मच वैल्यू? 90% फॉर redemption of rupees 30,000 debentures at a premium of 20% on the above date. So here 90% वैल्यू में इन्वेस्टमेंट को सेल किया, बट रिडेम्पशन कितना करना है? We can see there is 90,000 debentures, 90,000, but redemption is going to happen of only 30,000 debentures at a premium of rupees 20%. Sorry, at a premium of 20% on the above date. So जो प्रीमियम होने वाला है वो कितना है? 20%. 30,000 का 20% means how much? 6,000. So total amount that will be payable on redemption is 36,000. 30,000 value of debenture and 6,000 premium payable. तो इतना हम लोग क्या करने वाले? पेमेंट करेंगे रिडेम्पशन में. तो उतना ही रिक्वायर्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट भी करना है. सो उतने अमाउंट का क्या करना है? इन्वेस्टमेंट भी करना है. सो शो द 12% debentures account. Show the 12% debentures account, debenture redemption fund account, debenture redemption fund investment account, and debenture holders account. So here we have to prepare these accounts. First one, debenture account. Second one, debenture redemption fund account. Third one, debenture redemption fund investment account. Fourth one, debenture holders account. So all these accounts we will be preparing. So let us come here. Only one date is given. Only one date, na? 12%. See, what is that one date given? 1st April 2013. बाकी we do not have any dates. यही date पे redemption भी करना. So which all account? 12% debenture account, debenture redemption fund account, debenture redemption investment account, debenture holder account. These are the 4 accounts that we will be preparing. ये 4 accounts हम क्या कर रहे? Prepare कर रहे. Given in the question. Show all these accounts. यहाँ पे दिया है देखो. So these accounts we will prepare. सबसे पहले tell me. डिबेंचर 12% डिबेंचर क्या है? असेट या लाइबिलिटी?
लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पे डेट कौन सा दिया है? 1 April 2013. So I will write 1/4/2013 by balance brought down. How much is the balance of debentures? 12% debentures to debt, 90,000. So I have written here 90,000. Then how much is the value of debenture redemption fund? See, it is given in the question. Debenture redemption fund rupees 60,000. Debenture redemption fund rupees 60,000. Debenture redemption fund क्या है? Asset या liability? Debenture redemption fund. Fund मतलब reserve. Reserve मतलब liability. Reserves को किधर शो करते हैं? Asset side में general reserve, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब रिजर्व्स को रिजर्व्स एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और जैसे तुम लोगों ने बोला लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। सो अगेन 1/4/2013 हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज? 60,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000. इसके बाद यही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट भी है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अब बिकॉज इट इज अ असेट, इन्वेस्टमेंट मीन्स असेट, असेट मीन्स अगर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है तो असेट कौन सा बैलेंस होगा? ऑपोजिट होता है ना, debit balance. So again we have only one date given in the question. We will write to balance brought down. Again it is 60. जितना फंड में बैलेंस है उतना ही इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पे चाहिए तो यू कैन राइट इन द ब्रैकेट नॉमिनल वैल्यू इज हाउ मच? 75,000 ना? ये 90 है 75? नहीं, देखो यार, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 75,000 गिवन इन द क्वेश्चन. हमारा डिबेंचर 90,000 का है, बट जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो 60,000 तक ही हुआ है, and but उसका face value 75,000. Just we have written, we have shown that nominal value rupees 75,000. Now debenture holder we will do at the time of redemption only. वहां पे तभी बैलेंस ट्रांसफर हो. अभी देखो यहाँ पे हमने कंपनी ने क्या किया? सोल्ड required amount of investments at 90% for redemption of rupees 30,000 debentures at a premium of 20% on the above date. Above date given is what? 1/4/2013 because only one date is given. So यही डेट पे redemption करना है. Above date में above date given is what? 1/4. only one date is given ना. इसके अलावा आपको कोई भी अबाव में डेट नहीं दिखेगा. यही एक डेट दिया है. इस डेट में कंपनी ने क्या किया? अपना इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, बट दे हैव नॉट सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट. दे हैव सोल्ड ओनली रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट. नाउ रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितना? पेमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए? 30,000 plus premium 20%. So let us see amount to be paid on redemption कितना है? Go to the working note. Amount required to be paid on redemption. So it is how much? Rupees 30,000 debentures plus
20% premium, which will be equal to how much? Rupees 30 plus 6,000, which is equal to 36,000. ये तो पता चल गया, इतना हमें करना, इतने में हमें सेल करना है। तो ये 90% वैल्यू है, मतलब ये जो पैसा हमें चाहिए वो 90% वैल्यू है। सी दे हैव गिवन ना 90% अमाउंट में सेल किया। द अमाउंट sold required amount of 90%, amount of investment at 90% for redemption of 30,000 debentures at a premium of 20%. So अगर यहाँ पे हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का देखो क्या वैल्यू दिया है, इन्वेस्टमेंट का दो चीज दिया है, वन इज nominal value and other one is cost. Nominal value is how much? 75,000. Cost कितना है? 60,000. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 36,000 को सेल करने वाले, इतना हमें कितना पैसा चाहिए? 36,000। ये कितना परसेंट है? 90%। सो उसका कॉस्ट कितना? 100%। वैल्यू कितना रहेगा? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो हमें क्या करना, हमें ये जो हम जो सेल करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को 90% वैल्यू में करने वाले, एंड हमें कितना पैसा चाहिए सेल करते थे इन्वेस्टमेंट को? 36,000। कैसे पता चला? दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि इतना अमाउंट चाहिए कि 30,000 प्लस 20% प्रीमियम पे करने के जितना पैसा आए, बिकॉज कैश बैलेंस नथिंग इज गिवन। एंड ये सब में एक और चीज नहीं दिया, दैट इज एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी नहीं दिया, इंटरेस्ट वो भी नहीं दिया। डायरेक्टली वी हैव टू डू व्हाट? इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया है? हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज मिसिंग। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन। दिया है क्या क्वेश्चन ने? पूरा क्वेश्चन रीड किया, किधर तुमको मिला एनुअल कंट्रीब्यूशन, किधर मिला इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंटेज रिटर्न है? नहीं, तो ये सब है ही नहीं, इग्नोर इट, नॉट गिवन देन इग्नोर। बट व्हाट दे हैव गिवन? दे हैव गिवन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, एंड हम सारा इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करने वाले, करेक्ट? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 100%। So how we will do? 36,000 क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 100 डिवाइड बाय 90, we get 40,000। मतलब जो इन्वेस्टमेंट को हम सेल करने वाले हैं उसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड हम तो सेल किए 90% में, क्योंकि हमें कितना पैसा चाहिए रिटेंशन में पे करने के लिए? 36,000। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 इज द वैल्यू ना, 40 इज इट वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये 40,000 हम 75,000 में, देखो हम हमेशा परसेंटेज, जो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज होता है वो हम कॉस्ट पे नहीं निकालते, किस पे निकालते? नॉमिनल वैल्यू पे। तो हम 40,000, अगर 75,000 जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का नॉमिनल वैल्यू है, उसका कॉस्ट है 60,000, बट हमने पूरा 60,000 सेल नहीं किया,
राइट? सो हाउ मच विल बी द 40,000 का वैल्यू कॉस्ट? अगर 75,000 का 75,000 नॉमिनल वैल्यू है और उसका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 60,000, तो सेम वे हम ये क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले ये फाइंड आउट करो, 40,000 अगर नॉमिनल वैल्यू है तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाई 75,000, तो कितना आ रहा है? ₹32,000। तो मतलब देखो, हमने जो 40,000 का इन्वेस्टमेंट सेल किया फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, कितने में सेल किया? 36। तो तुम लोग बोलोगे ये तो लॉस है, अभी तुम बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है? टेल मी, जो हमने सेल किया, हमारा इन्वेस्टमेंट 40,000 उसका नॉमिनल वैल्यू है, बट हमने सेल कितने में किया? 36,000 में। हमने सेल कितने में? हमें कितना पैसा चाहिए था? 30 + 20%, मतलब हमें चाहिए था 36,000। हमने 40,000 नॉमिनल वैल्यू का इन्वेस्टमेंट 36,000 में सेल किया, तो टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? इट्स अ प्रॉफिट। हाउ? वो 40,000 का कॉस्ट हमें कितना लगा था और हमने कितने में सेल किया? 36 में, मतलब इट्स अ प्रॉफिट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, जहां पे हमने 90% नॉमिनल वैल्यू का निकाला था। यहाँ पे भी देखो, पूरा ये क्वेश्चन में हम पूरा इन्वेस्टमेंट सेल नहीं कर रहे, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे। रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है? 36,000। तो इतना पैसा हमें चाहिए। तो ये अगर 90% क्वेश्चन में दिया है कि हम जो इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं वो कितना परसेंट है? 90%। तो 100% कितना रहेगा? वी गॉट 40,000। तो 75,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उस पे हम, उसका कॉस्ट है 60,000, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट सेलिंग ऑल 75,000, वी आर सेलिंग ओनली 40,000। तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट कितना रहेगा? 32,000। सो 32,000 का चीज हमने 36,000 में सेल किया, सो इट्स अ प्रॉफिट। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? नॉमिनल वैल्यू किस लिए होता है? नॉमिनल वैल्यू होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए, राइट? और जब भी परसेंटेज देते तो कॉस्ट का नहीं, नॉमिनल वैल्यू का रहते हैं, इफ इट इज स्पेसिफिकली नॉट टोल्ड। सो कितना है इसका? 32,000। कॉस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इस 32,000, इसमें से लेस करेंगे नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स या सेल वैल्यू, नेट प्रोसीड लिखूं या सेल वैल्यू लिखूं? सेल वैल्यू लिखती हूं। सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज 36,000। 32 का कॉस्ट, सेल है 36, सेल वैल्यू। सो व्हाट इज हैपनिंग? इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। कॉस्ट ये आप ओरली भी देख के समझ सकते हो। हमें मिला था 32,000 में, बट हमने सेल किया 36,000 में, तो ये हो गया 4,000 का प्रॉफिट। तो नाउ वी कैन मूव अहेड। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। टेल मी, इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं
ये डेट में। इन्वेस्टमेंट इज असेट, सेल करेंगे तो कम होगा, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट, और सेल करेंगे तो क्या मिलेगा, कैश बैंक अकाउंट। कितना पैसा मिला, राइट। अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हुआ है, प्रॉफिट होगा मतलब ये कहां पे रहेगा, टू, किधर प्रॉफिट को ट्रांसफर करते, डिबेंचर रिडक्शन फंड प्रॉफिट। और क्या हो जाएगा इससे, प्रॉफिट से फंड का पैसा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट से फंड का पैसा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज होएगा मतलब लाइबिलिटी है, ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे बताएंगे ऑपोजिट इफेक्ट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, वर्किंग नोट में हमने फाइंड आउट किया है। Now close this account. Close this account. How much it is? लेकिन ये अच्छा ये कर लेते, उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन ड्यू का एंट्री पास करेंगे। कितना आ रहा है बैलेंस, पूरा इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हुआ है, ये टैली नहीं होगा ये अकाउंट, बिकॉज पूरा इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हुआ। पूरा इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है क्या, तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट में बैलेंस होगा। कितना बैलेंस है अभी इन्वेस्टमेंट में, 28,000। जितना इन्वेस्टमेंट में बैलेंस होगा डीआरआर में भी उतना ही बैलेंस होना चाहिए। सो डीआरआर क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस किधर रहेगा, डेबिट साइड में रहेगा। तो इधर लिखेंगे 1/4/2013 इसका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। जितना इन्वेस्टमेंट में बैलेंस, फंड में भी हमें उतना ही बैलेंस रखना है, इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्वल अमाउंट। जितना फंड में बैलेंस है उतना ही इन्वेस्टमेंट। तो बाकी का हम क्या करेंगे बताए, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, वो एंड में करते, अभी नहीं। पहले तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, अभी ड्यू का एंट्री पास करते हैं। टेल मी कितना ड्यू, मतलब डिबेंचर कम हो जाएगा, डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी, डिबेंचर इज अ क्रेडिट बैलेंस, कम होगा पेमेंट में, रिडेम्पशन में। सो डेबिट में लिखेंगे, किसको देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को। किसको डिबेंचर का पैसा देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को। बट हाउ मच डिबेंचर आर वी रिडीमिंग, 90,000 में हम कितना रिडेम्पशन करने वाले, गिवन इन द क्वेश्चन 30,000 डिबेंचर ही रिडीम करने वाले। सो कितना बैलेंस बचेगा, ये अकाउंट को क्लोज करो। कितना अभी भी ड्यू है, 60,000। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ना, इसको क्या बोलेंगे, 1/4/2013 टू बैलेंस कैरीड डाउन। दिस इज डन। अब हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट बना रहे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो टू का ऑपोजिट, सेम डेट जब रिडेम्पशन हो रहा है 1/4/2013, बाय नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर का ऑपोजिट रहेगा, टू का ऑपोजिट बाय नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, 12% डिबेंचर by 12% debentures account. Tell me डिबेंचर होल्डर्स को
क्या हम सिर्फ डिबेंचर का पैसा दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे, प्रीमियम दे रहे? हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर अकाउंट है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट का एंट्री कैसे होगा? 12% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स, मींस डिबेंचर होल्डर्स को हम डिबेंचर का पैसा देंगे, व्हाट एल्स वी विल गिव, प्रीमियम भी पे करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा पे करना है रिडेम्पशन में. सो सेम में वी विल राइट बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट. कितना प्रीमियम है? 20%, 30,000 का 20%. नाउ ये रिडेम्पशन का ड्यू का एंट्री हो गया. अब ये पूरा क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, ड्यू होने के बाद, ड्यू अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? पेमेंट ना. ड्यू के बाद पेमेंट पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर का 36,000 जो पे करना बाकी था पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा. मनी विल गो आउट. सो इधर लिखेंगे 36,000, सेम डेट में 1/4/2013 ये हो जाएगा 2 कैश. पे करेंगे ना, मनी विल गो आउट एंड 2 का ऑपोजिट कैश बैंक अकाउंट में बाय डिबेंचर होल्डर्स. बाय मतलब पेमेंट, बाहर जा रहा है पैसा, 2 का कैश बैंक में बाय में आ जाएगा. So money is going out. This is also done. Only one account is remaining ना, which is this fund. तो यहाँ पे कितना है? 64,000. यहाँ पे कितना है? 64,000. लेकिन हम जनरल रिजर्व में सिर्फ नॉमिनल अमाउंट, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जनरल रिजर्व में जाता है, राइट? तो यहाँ पे जो हमने प्रीमियम दिया ना, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन डीआरआर कम हुआ. डीआरआर क्या है? रिजर्व है. डीआरआर क्या है? रिजर्व है. उसमें बैलेंस कम हुआ है तो प्रीमियम का लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 1/4/2013. कितना प्रीमियम पे किया? 6,000. और उसके बाद यहाँ पे अभी देखो, जब डीआरआर का बैलेंस किधर ट्रांसफर करते? डीआरआर का बैलेंस हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते रिडेम्पशन होने के बाद. सो यहाँ पे बट अभी तक पूरा रिडेम्पशन नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व. बैलेंसिंग फिगर कितना है देखो, बैलेंसिंग फिगर विल बी 30,000. बैलेंसिंग फिगर इज 30,000 जो कि हमने कहा ट्रांसफर किया? जनरल रिजर्व में. इसके साथ दिस सम यस इज कंप्लीट, डन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.